Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 30th July 2020. So let us see which are the important articles and developments in today's newspaper. The most important development is that yesterday the cabinet approved National Education Policy 2020, and let's say most of the important aspect in today's newspaper can be taken from these articles along with some other important articles for मेंस एंड प्रीलिम पर्पस. तो पहले सबसे हम देखते हैं कि ये आर्टिकल्स जो है दीज आर रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ओके, सो we will not directly deal with these articles, rather we will try to understand directly what is given in National Education Policy 2020. So automatically all important aspect in these articles will be covered from that aspect. So for men's perspective, they discuss the salient features of National Education Policy. तो इस तरीके से आपको एक बेसिक 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. जो भी एनालिसिस वाला जो एस्पेक्ट होगा, तो अभी ये नेक्स्ट वीक में सारे इसके एनालिसिस के ऊपर आर्टिकल्स आएंगे, तो हम उनको फॉलो अप रखेंगे एंड देन वी विल हैव एनालिसिस ऑफ this national education policy. Today we will try to understand some salient features of this policy for mains and prelims perspective. ठीक है, तो ये क्या इसके highlights है. For school education and for higher education we have separated them as given in national education policy. So in school education there will be some reforms, for example ensuring universal access to at all levels of school education. There is something that is talking about universalization of education from preschool to secondary level with 100% gross enrollment ratio, okay, GER. So this is the target to be achieved by 2030. हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा टारगेट वो 2030 तक अचीव करने का है. At the same time, NEP will bring 2 crore out of school children back into the mainstream. ये एक हम बोल सकते हैं उसमें एडिशन. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर. सो हमने ये 5+3+3+4 ये एक नया अप्रोच जो है हम बोल सकते हैं स्कूल एजुकेशन के लिए करिकुलम and pedagogical structure तैयार किया गया है. So in that 12 years of schooling will be there and 3 years of अंगनवाड़ी और pre-schooling. ठीक है, so this is very important aspect that is added through this new education national education policy. Earlier there was let's say national education policy of 1988. ठीक है, इससे पहले की जो पॉलिसी है वो कहाँ की है, 1988. तो उसके बाद अभी डायरेक्टली 2020 यानी कि 32 इयर्स के बाद अभी एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है. ठीक है, तो उस पॉलिसी में प्री एज स्कूलिंग या फिर आंगनवाड़ी एजुकेशन की बात नहीं हो रही थी. अभी ये नया एस्पेक्ट उसमें ऐड किया है. The NCERT will develop national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education, जिसका ये NCPFE CCF की बात कर रहे हैं अप टू लेट्स से एज ऑफ 8. ठीक है, अटेनिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज वी कैन से दैट रिमेन्स विद द चाइल्ड फॉर लाइफ लॉन्ग. ओके, तो वो एक अर्ली एज में जो भी ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो हम बोल सकते हैं कि 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स अप टू 5 years ऑफ एज. ठीक है, तो उसी वक्त में ये फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर लेट्स से फॉर फर्दर स्टडीज़ और एजुकेशन. एम्फेसिस ऑन दिस फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. हाउ this NAP 2020 calls for setting up of national mission on foundation literacy and numeracy by Ministry of HRD. Fine. Some few points in school education. ठीक है, आगे की बात करते हैं. रिफॉर्म्स इन स्कूल करिकुलम एंड पेडागॉगी. ठीक है, तो नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, यानी कि जो साइंस है या फिर आर्ट है और कॉमर्स है
या फिर सोशल साइंस की बात करते हैं ना हम, कि साइंस है, सोशल साइंस है, इसमें आर्ट है, इसमें कोई भी एक रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और उसमें मतलब इंटीग्रेशन किया जाएगा, वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा नॉर्मल करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में। ए न्यू कॉम्प्रेहेंसिव नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन will be developed by NCERT, National Council of Education and Research and Training. Vocational education to start from class 6 with internship. Now this is very important and new aspect. अभी तक जो है वो वोकेशनल एजुकेशन क्लास 8 के बाद बात होती थी, जो भी है सेकेंडरी एजुकेशन एंड अबव। तो क्लास 6 के बाद इमीडिएटली क्लास 6 से ही वो इंटर्नशिप कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स है वोकेशनल एजुकेशन में। Fine. Along with normal education, multilingualism and power of language, where here it is talking about at let's say teaching up to at least grade 5 to be in mother tongue or regional language. ये एक्सटेंडेबल है इन्हीं इसमें क्लास 8 तक, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ट्राई करना चाहिए कि क्लास 8 तक भी वो मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड बाय लेट्स से ऑन एनी स्टूडेंट। सो जो पहले के ड्राफ्ट में, ड्राफ्ट NEP जो बनाया था पहले का, सो इन दैट देयर वाज कंसर्न रिगार्डिंग वी कैन से दैट imposition of Hindi language on all states. So now that provision has been removed from that draft NEP, and this final NEP, National Education Policy, says that no language will be imposed on any student. Assessment reforms, अभी जो हम बोलते हैं कि हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, पेडागॉजी है, या फिर असेसमेंट का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज लार्जली फोकसिंग ऑन लेट्स से रोट लर्निंग। ओके, सो एग्जाम पैटर्न जो होता है वो ज़्यादातर फोकस करता है रोट लर्निंग पे, रादर दैन एक कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, 360 डिग्री होलिस्टिक assessment of the student, and therefore there will be reforms with 360 degree holistic progress card tracking student progress for achieving learning outcomes. तो इस पे फोकस होगा अभी, learning outcomes. Fine. A new national assessment center, परख, आप देख सकते हैं परख मतलब जो हम बोलते हैं ना असेस करना हिंदी में। So performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development will be set up as a standard setting body. ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप की जाएगी फॉर लेट्स से स्टैंडर्ड इन असेसमेंट इन स्कूल एजुकेशन, परख। फाइन, तो ये भी आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन, equitable and inclusive education, setting up gender inclusion fund, let's say for girls education and LGBT, let's say those children from that community, we will say that the gender inclusion fund is set up for necessary infrastructure creation in schools, and that fund, the let's say finance from that fund will be provided to the states who have such kind of infrastructure. Also special education zones for disadvantaged regions and groups, जैसे कि हम बोलते हैं कि बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होता है, स्कूल्स नहीं होते हैं, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स क्रिएट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है ज़्यादातर बैकवर्ड रीजन में हो रहा है। So in that the special education zones will be created. Every state or district will be encouraged to establish Bal Bhavans as a special daytime boarding school to participate in art related, career related और play related activities, ठीक है। तो एक कम्युनिटी सेंटर की तरह बाल भवन्स होंगे जहाँ पे स्टूडेंट आके ड्राइंग सीख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ उनको दी जाएंगी, ठीक है। तो डे टाइम बोर्डिंग स्कूल जिसको बोला गया है। एट द सेम टाइम फ्री स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड एज सामाजिक चेतना केंद्र। तो ये एक नया चीज़ ऐड किया गया है, जैसे कि जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जगह बची हुई है, ठीक है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर लेट्स से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम,
ठीक है, जिसको हम सामाजिक चेतना केंद्र बोल रहे हैं। तो ये इसका यूज जो है वो अवेयरनेस क्रिएशन हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर की बात जो होती है, ठीक है, तो साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेशन पे आप बोल सकते हैं कि कम्युनिटी जो होती है, विलेजर्स को अवेयर करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका जो एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज करने के लिए ये एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, सामाजिक चेतना केंद्र। Robust teacher recruitment and career path. A common national professional standards for teachers will be developed by NCTE by 2022. ओके, तो ये एक टीचर्स एजुकेशन के लिए या टीचर्स के लिए एक स्टैंडर्ड्स तैयार की जाएंगे, रिक्रूटमेंट के लिए भी NCTE करेगा और वो स्टैंडर्ड लागू होंगे ऑल ओवर इंडिया। Standard setting and accreditation for school education. States and UTs will set up independent state school standards authorities, ठीक है, SSSA and SCERT जो हर स्टेट का एक स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, will develop a school quality assessment and accreditation framework SQAAF through consultation with all stakeholders, ठीक है। तो जैसे NCERT होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे SCERTs होते हैं, दे विल डेवलप ए लेट्स से स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन फ्रेमवर्क, वो लागू होगा उन स्कूल्स में, उस स्टेट के स्कूल्स के लिए। फाइन, नाउ द हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, so it is targeting increase in gross enrollment ratio in higher education to 50% by 2035, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज अराउंड 25%, ठीक है, इसको डबल करना है हमें, ये टारगेट है, ठीक है। एट प्रेजेंट इट इज अराउंड 25%, नाउ वी हैव टू डबल दैट बाय 2035। 3.5 crore सीट्स टू बी एडेड इन हायर एजुकेशन in that period. Holistic multidisciplinary education, so here it is talking about the higher education curriculum to have flexibility of subjects, तो चॉइस कर सकते हैं स्टूडेंट उसमें। मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कैन बी ऑफ 3 to 4 years with multiple exit options and appropriate certification within this period. For example, certificate after 1 year, advanced diploma after 2 years, bachelor's degree after 3 years and bachelor's with research after 4 years, ठीक है। तो ऐसे आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर स्टूडेंट कुछ अनफोर्सिन रीजंस की वजह से एग्जिट करना चाहता है या एंट्री भी करना चाहता है, सो देयर विल बी ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कहीं ना कहीं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है फर्स्ट ईयर के बाद ड्रॉप करना पड़ रहा है और बहुत सालों के बाद वो फिर से कंटिन्यू करना चाहता है एजुकेशन, तो वो कैसे फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, 1 साल उसका वेस्ट हो जाता है। फाइन, सो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दी है। एट द सेम टाइम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी एस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। सपोज कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनका जो लेट्स से सन है, तो वहाँ पे वो कोई अलग जगह पे वो शिफ्ट हो रहे, समझो ट्रांसफ़र हो रहे, तो उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट का, तो वो वहाँ के क्रेडिट्स जो कंप्लीट करता है, तो नई जगह पे जाने के बाद वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा, तो वो क्रेडिट्स ट्रांसफ़र होने चाहिए नए कॉलेज में। सो दिस इज़ व्हाट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ टॉकिंग अबाउट। देयर विल बी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ओके। So multidisciplinary education and research universities MERU at par with IITs and IIMs will be set up as a model of best multidisciplinary education of global standards in the country, ठीक है। तो National Research Foundation will be set up as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacities across higher education, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस देखने हैं यहाँ पे, जैसे कि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट वी कैन से दैट रेगुलेशन जो होता है हायर एजुकेशन में, देयर विल बी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस विल बी एन अम्ब्रेला बॉडी, सिंगल ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला बॉडी फॉर एंटायर हायर एजुकेशन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन,
ठीक है, ये दोनों को बाहर निकाला गया है। मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, ये सेपरेट किया गया है, इनके लिए अलग से बॉडी रहेगी जो रेगुलेटरी बॉडी है। रादर जो रिमेनिंग सारा एजुकेशन का, जो हायर एजुकेशन का गैमेट है, उसके लिए एक ही अम्ब्रेला बॉडी रहेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड दिस विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स: नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग एंड नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडेशन। तो हमने थोड़े दिन पहले जब यूजीसी और एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो तब मैंने एनालिसिस में आपको ये बताया था कि यूजीसी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ लेट्स से बॉडी टू ग्रांट फंडिंग टू यूनिवर्सिटीज़, बट उसी एक्ट में हमने जो स्टैंडर्ड सेटिंग का क्राइटेरिया भी, फंक्शन भी उन्हीं को दे दिया था, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो गया था। इसलिए अभी देखिए 2 बॉडीज़ है, जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग एंड हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, तो ये सेपरेटली काम करेंगे अंडर अम्ब्रेला बॉडी। फाइन। तो नैक पहले से ही था, नेशनल एक्रीडेशन जो काउंसिल था, तो वो अभी नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल जो है वो कंटिन्यू रहेगा अलग से इस अम्ब्रेला बॉडी के। प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी गवर्न्ड बाय सेम सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, एक्रीडेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं रहेगा, रेगुलेशन हो या एक्रीडेशन हो या स्टैंडर्ड्स हो। रैशनलाइज इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, here it is talking about, let's say, affiliation system to be phased out in 15 years with the graded autonomy to colleges। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन सिस्टम होता है, नैक आके उनका एक्रीडेशन करता है और फिर वो एफिलिएशन होता है हर एक यूनिवर्सिटी के साथ में। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी फेज्ड आउट विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू दिस कॉलेजेस। फाइन। मूविंग ऑन, Teachers Education, a new comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 21 will be formulated by again NCTE in consultation with NCERT। ठीक है, तो ये अलग है, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के लिए है। हमने इससे पहले जो देखा था वो स्कूल एजुकेशन और स्कूल टीचर्स के लिए देखा था। फाइन। बाय 2030 मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग विल बी 4-year इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा बीएड डिग्री 12th स्टैंडर्ड के बाद में, ग्रेजुएशन का। ठीक है, एट प्रेजेंट व्हाट हैपन्स इज वी नीड टू हैव सर्टन ग्रेजुएशन लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम एंड देन दे कैन डू बीएड। ठीक है, तो उसके बाद वो स्कूल टीचर बन सकता है। फाइन। तो इसके लिए अभी एक इंटीग्रेटेड डायरेक्टली बीएड डिग्री होगी, वो पास करनी पड़ेगी। National mission for mentoring will be established with large pool of outstanding senior and retired faculty. Now they will be, let's say, providing short term and long term mentoring to university and college teachers। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा हम बोल सकते हैं कि नॉलेज को यूज़ करने का, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करने का एक तरीका है। जो हमारे रिटायर्ड और सीनियर फैकल्टीज होते हैं, दे कैन बी हेल्पफुल टू मेंटर द अपकमिंग एंड लेट्स से यंग university teachers and college teachers, right? So online education and digital education, इसमें उन्होंने बोला है कि एक separate dedicated unit होगा for purpose of let's say the building of digital infrastructure, digital content, capacity building will be created in Ministry of HRD to look after e-education needs of both school and higher education. So basically this will be, let's say, targeting to bridge डिजिटल डिवाइड इन द कंट्री। ठीक है, तो आप ये प्रोविजन लिख सकते हैं जब भी क्वेश्चन डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं। एंड लास्टली, द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, देयर विल बी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, एन ऑटोनॉमस बॉडी दैट विल बी क्रिएटेड to provide a platform for free exchange of ideas to use technology to enhance learning assessment। ये अभी तक नहीं था, सेपरेट ऑटोनॉमस बॉडी नहीं था। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल एक्ट एज अ, लेट्स से, pool of ideas
wherein the, let's say, use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration in education can be done. प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये बहुत ही अच्छा उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है. एनईपी रिकमेंडेड सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI, ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, ठीक है. तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट अलग से भी बना सकते हैं या एक ही बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट बोला है. तो ये नई इंस्टीट्यूट्स उन्होंने बोला है फॉर, लेट्स से, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. इन टर्म्स ऑफ अडल्ट एजुकेशन, पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी. ओके, तो इतना ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें. फाइनेंसिंग एजुकेशन, ये रिपीट हुआ है, हम बोल सकते हैं 6% ऑफ GDP. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पहले की थी वो भी बोल रहे थे कि 6% होना चाहिए. All the committees like Kasturi Ranjan committee, Subramaniam committee, all they let's say recommended that there should be increase in funding by center and state, and that should be, let's say, up to 6% of total GDP of the country. Fine. तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए. At present it is around 4%. ठीक है, हम बोल सकते हैं 3.5 to 4% अभी टोटल मिला के सेंटर और स्टेट्स का वो GDP के है. फाइन. सो दिस वाज अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. इस पे प्रैक्टिस प्रीलिम्स क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं देख सकते हैं आप, और ये सॉल्व कर सकते हैं. जो भी अभी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है उसके रिगार्डिंग ये MCQs है. फाइन. और एक MCQ हम उसमें ऐड कर सकते हैं. बहुत सारे MCQ बन सकते हैं उसमें, हम टाइम टू टाइम वो ऐड करते रहेंगे. फाइन. तो ये स्पेशल एजुकेशन जोन जो था, दैट वाज फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स और ग्रुप्स के लिए था, नॉट स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए. ठीक है, तो गर्ल्स के लिए उन्होंने जेंडर फंड जो है वो अलग से बनाया गया है. नेक्स्ट आर्टिकल ऑन पेज नंबर 7, फ्यूअर स्पेसीज मोर डिसीजेस. द आर्टिकल इज हैविंग, लेट्स से, जनरल डिस्कशन ऑन, लेट्स से, ह्यूमन, how human has been, let's say, encroaching upon natural habitats of these wildlife species, and because of that these diseases, for example, dangerous infectious diseases like Ebola, bird flu, MERS, SARS, Nipah, and even this COVID-19 have transferred from wild animals to humans. And we know that in order to clear the land for agriculture development, forests and habitats have been destroyed. In a process we have lost several species also. जो biodiversity की बात करते हैं हम, extinction of species, and this human induced environmental changes reduce biodiversity, resulting into new conditions that hosts vectors and pathogens. ठीक है. अबाउट कोविड-19 हम देखते हैं कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट इट स्प्रेड फ्रॉम वाइल्ड लाइफ मार्केट फ्रॉम इन वुहान, चाइना. देर आर 2 hypotheses फॉर दिस origin. Virus jump from bats directly to human and from bats to pangolins and then to humans. Apart from wildlife markets, illegal trade of wildlife is a part of growing problem. हम देख सकते हैं कि वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है. Trafficking in wild plants and animals and wildlife products have become one of the largest and most lucrative forms of organized crimes. जब हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज़ ये रिपोर्ट देती रहते हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा अभी वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल ट्रेड, और उसमें ज़्यादा हो रहा है. इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग इज एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज यूनिक वाइल्ड लाइफ हेरिटेज. Body parts of these animals including pangolins, Asiatic black bears, rhinos are traded to these countries, China, Vietnam, Laos. By distributing a disturbing the delicate balance of nature, we have created ideal conditions for spread of viruses from animals to humans. तो आपको समझ में आ रहा होगा पूरे डिस्कशन में ये किस तरीके की बात हो रही है, that we are encroaching upon let's say natural habitats of wildlife species, and these wildlife species have let's say these vectors and pathogens. They carry these vectors and pathogens naturally, okay,
एंड ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस दे आर नाउ ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए वे फॉरवर्ड उन्होंने दिया है, वी मस्ट फॉलो वन हेल्थ अप्रोच विच कंसिडर्ड ए हेल्थ ऑफ पीपल, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट। तो सारे जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ, नेचर्स हेल्थ को इंटीग्रेट करना चाहिए और वैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए। वी नीड टू स्ट्रिक्टली रेगुलेट हाई रिस्क वाइल्ड लाइफ मार्केट्स, प्रोमोट ग्रीन जॉब्स एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमीज। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आप आंसर में यूज़ कीजिए, ऐसे में यूज़ कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक टू इंडिया, वे फॉरवर्ड, India should strictly enforce WPA 1972, which prohibits the trade in these species. Biological Diversity Act 2002 strategies and action plans including National Biodiversity Targets and National Biodiversity Mission. तो इसके लिए ये इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बोला है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ है लोकल लेवल पे, दीज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ अंडर दिस एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दे कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिगार्ड। इन कंक्लूजन, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी, देखिए ये वर्ड अलग से यूज़ किया गया है, बहुत ही यूनिक वर्ड है। इकोनॉमिक इंटीग्रिटी विल रेगुलेट डिसीजेस एंड रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ दिस पैथोजेंस फ्रॉम वन स्पेसीज टू अनदर। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी या इकोसिस्टम इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इकोसिस्टम वर्क्स एंड ह्यूमन शुड लेट्स से रिस्पेक्ट दीज लॉज ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम के प्रोसेसेस होती है, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। फाइन, तो ये इनपुट्स आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है GS 3 में, ठीक है, या फिर अगर एस्से आता है तो एस्से में भी आप ये एनालिसिस ऐड कीजिए। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, नतेसा ऑफ राजस्थान टेम्पल रिटर्न्स टू इंडिया। सो नतेसा इज़ दिस आइडॉल, उसको नाम दिया गया है। ये 22 साल से इंडिया से क्या बोलते हैं हम, इलीगली स्टील करके वो ट्रांसपोर्ट किया गया फॉरेन में, तो वो अभी रिटर्न होने वाला है। इट वाज ओरिजिनली फ्रॉम घाटेश्वरा टेम्पल, बारोली, राजस्थान। ठीक है, तो 4 फीट ये एक डिपिक्शन ऑफ शिवा है फ्रॉम 19th सेंचुरी प्रतिहारा स्टाइल ऑफ राजस्थान। सो गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। इट वाज लेट्स से इन पावर ड्यूरिंग लेट क्लासिकल पीरियड, जिसको बोलते हैं हम मिड 8th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी। जब हम बोलते हैं कि हर्षवर्धना का रूल जो है कन्नौज रीजन से वो कम हो गया था, देन देर वॉज फाइट बिटवीन दिस प्रतिहारास इन द वेस्ट, पलास इन द ईस्ट एंड चालुक्यास फ्रॉम द साउथ। ठीक है, तो इन तीनों में जब फाइट हुआ तो कन्नौज के ऊपर इन्होंने काफ़ी साल रूल किया है प्रतिहारास। पहले वो उज्जैन में थे और फिर वो प्रतिहारास जो है कन्नौज पे आ गए थे। नोटेबल किंग्स नागबाटा 1, वत्सराजा, नागबाटा 2, ये इम्पोर्टेंट किंग्स है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारे लिए एग्जाम के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, and one of the important aspect is that these temples are constructed in an open pavilion style. Okay, तो कौन से examples है? The best example is Khajuraho temple complex which is built by Chandelas of बुंदेलखंड, वो उन्हीं का पार्ट थे, गुर्जरा प्रतिहारा डायनास्टीज के ही पार्ट थे। बाटेश्वर हिंदू टेम्पल ऑफ MP, बारोली temple complex which has 8 temples in one complex, this is again built by Gurjara Pratiharas। ठीक है, तो ये बारोली कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से घाटेश्वर टेम्पल है जो बारोली में है। ठीक है, तो वहाँ से ये आइडॉल जो है वो चुराया गया था। फाइन, सो आपके एग्जाम के लिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स बिल्ट इन प्रतिहारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो बाटेश्वर हिंदू टेम्पल है, या फिर कोणार्क टेम्पल जो है वो नहीं है इसमें।
बाकी खजुराहो टेम्पल एंड बारोइल टेम्पल्स है। कोणार्क टेम्पल जो है वो कलिंगा स्टाइल का है, ठीक है, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो ओडिशा या कलिंगा रीजन जिसको बोलते हैं हम, ओडिशा बीच कोस्टल एरिया जो है वहाँ पे वो डेवलप हुआ है, ठीक है। सो कोणार्क सन टेम्पल, पुरी, ओडिशा। फाइन, सो दैट्स व्हाई आंसर बिकम्स डी। सो द कैप्शंस एंड कोटेशंस फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, तो वो जो अभी हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल देखा था, तो इसमें आप ये यूज़ कीजिए कि वी शुड रियलाइज दैट वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर बायोडाइवर्सिटी इज कॉमन हेरिटेज एंड नेचुरल कैपिटल। फाइन, और ये इकोनॉमिक इकोसिस्टम इंटीग्रिटी की बात जो कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट और एसे में आप ये कैप्शंस यूज कीजिए। फाइन, सो this was about today's The Hindu newspaper. For further information regarding editorial discussion classes wherein in-depth analysis of all these articles, जैसे कि आज हमने देखा था डेवलपमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, तो उसका in-depth एनालिसिस होगा, ठीक है, कि जैसे ये पहले हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उससे कैसे डिफरेंट है, क्या नई चीज़ें ऐड की गई है, राइट। एट द सेम टाइम whether this is sufficient in the present times, looking at, let's say, whether it is able to address the challenges created by COVID-19 disease also, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे उसमें, और वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव आपका तैयार किया जाएगा अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज़ डन बाय अंसारी सर एंड टीम. So to enroll to that course, editorial discussion course, you can contact Lukman IAS. Thank you.